Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 17, chapter name Height and Distance of class 10th Mathematics. So let's start the video from 10th question. Now question number 10th is given that in figure 17.21 the top of the tower is observed from 2 points on the same horizontal line through a point on the base of the tower. If the angle of elevation at the 2 points be 30 degree and 45 degree and the distance between them is 20 meter, find the height of the tower. First of all, we draw this figure, then we will discuss the solution of this question. Okay, this is given figure. Suppose tower AB, clear, इसकी नेमिंग कर लेते हैं AB, C and D. Okay. The top of the tower is B and foot of the tower is A. On a horizontal plane, 2 points C and D through which the angle of elevation of the top of the tower be 45 and 30 degrees respectively. So find the height of the tower. First of all, suppose here height of the tower as a H and CA की वैल्यू नहीं मालूम है. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, देखिए समझिएगा, हमको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है तो बेस इसका पूरा भी नहीं क्लियर हो पाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए. एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विच फॉर्म द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस वी कैन यूज एज ए tan 45. So tan theta is equal to perpendicular upon base, and tan 45 degree is equal to perpendicular as a H and base as a AC. Tan 45 is equal to 1. We can write here 1 is equal to H upon AC. Means we can write AC is equal to H. AC is equal to H. It is your first equation. Clear? Now again apply the same formula in the triangle BDA. In triangle BDA, now in triangle BDA, tan 30 degree is equal to perpendicular is same as a H, but base from D to A means 20 plus ये CA की वैल्यू कितनी मिली है H. So टोटल बेस कितना हो गया 20 plus H, 20 plus H. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको H की वैल्यू निकालनी है. कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 मीन्स H अपॉन 20 प्लस H. क्लियर. अब इसको हमको सॉल्व करना है, यही सॉल्व कर देते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस H मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई H. So root 3h is equal to 20 plus h. Now transfer h to left side. Root 3h minus h is equal to 20. H as a common in bracket. Root 3 minus 1 is equal to 20. Means h is equal to 20 upon root 3 minus 1. Clear? अभी क्या होगा, इसको अगर हम रेशलाइज कर दें तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी. रेशलाइज कैसे होगा, सबसे पहला काम h इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. रूट 3 माइनस 1 ऑलरेडी है एंड रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1. क्लियर. न्यूमरेटर तो उसी तरीके से है, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है. रूट 3 प्लस 1, बट यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का रूल लग जाएगा. a माइनस बी 3 माइनस 1 एज ए 2. सो h इज इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट रूट 3 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये हो गए 10. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ये 2.732 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.732 मीन्स 27.32 मीटर एज ए आंसर. क्लियर. तो ये क्वेश्चन हो गया आपको कंप्लीट. ये हाइट ऑफ द टावर मालूम हो गई.
यूनिट ज़रूर लिखिएगा, यूनिट की जो भी सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया जाएगा तो सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख दीजिएगा। यहाँ पे मीटर के फॉर्म में था तो लेंथ जो है हाइट ऑफ द टावर आपकी मीटर के फॉर्म में आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A person is standing on the bank of a river. Observe that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, means उससे दूर चला गया, he finds the angle of elevation be 30 degree. Find the height of the tree, correct to 2 decimal places, and the width of the river. तो दो चीज़ें हैं, पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया गया, फिर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इस तरीके का कोई आपका इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सपोज कर लें रिवर है, क्लियर है, ओके, ये रिवर का एक किनारा है, बाकी ये दूसरा किनारा है। अब आपसे कहा ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मीन्स यहाँ पे जो ट्री है, सपोज कर लीजिए ये आपका ट्री है, तो यहाँ से इस ट्री के टॉप को देखने पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये दिया गया है आपका 60 डिग्री है। ये रिवर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी रिवर है। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब वो 40 मीटर इस डायरेक्शन में चला गया, मीन्स दूर चला गया, ये लेंथ है 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब यहाँ से उसने देखा तो जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बी 30 डिग्री। मीन्स अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा था उसको देखने पर वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया गया है। आपसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये फाइंड करना है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ये सपोज कर लीजिए x है, ये फाइंड करना है। तो ओवरऑल ये आपका डायग्राम बनता है। तो इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। तो सबसे पहला काम इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ कर लेंगे। हमको x एंड h की वैल्यू फाइंड करनी है। So let's see the solution of question number 11th. In triangle BCD, in triangle BC and D, tan 60 is equal to perpendicular upon base. Tan 60 is equal to perpendicular upon base. tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, मीन्स √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा h एंड x के फॉर्म में, मीन्स h इज इक्वल टू √3x। ये हो गए आपके फर्स्ट रिलेशन। जहाँ ज़रूरत होगी इसकी हेल्प से हम h या x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ADC, ये राइट एंगल है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कंप्लीट बेस है, मीन्स 40 प्लस x एज ए बेस। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 मीन्स 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। क्लियर। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट the relation between h and x, means √3h is equal to 40 plus x. It is your second relation. Okay. अब देखिएगा अगर से फर्स्ट रिलेशन से h की वैल्यू यहाँ पे लाकर रख दी जाए तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और जब x की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम h की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इस रिलेशन को बस हमको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation 1 and 2, क्लियर। अब इसमें देखिए होगा क्या आपको, जब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू √3, एक √3 तो ऑलरेडी है और ये वैल्यू ऑफ h हो गई, इज इक्वल टू 40 प्लस x, मीन्स 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x। इट्स मीन 2x इज इक्वल टू 40
एंड x इज इक्वल टू 20 मीटर। हो गए, एक रिलेशन मिल गया ना, 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दिया जाए तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3x ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 h is equal to √3x, √3 मीन्स 1.732 एंड x मीन्स 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 34.64 मीटर। ये हो गया 2 डेसिमल नंबर के फॉर्म में, बस ये आपका आंसर हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को जो भी स्टेटमेंट होगा वर्ड फॉर्म को आपको एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। डायग्राम में वो सारी चीज़ें दी होती हैं जिससे अननोन क्वांटिटी फाइंड की जा सके। तो सीधा सा कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अप्लाई हो सकता होगा वहाँ पे, साइन कॉस टैन में से कुछ, उसको अप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। Thank you everyone. Goodbye.